Good morning, students. Today we are going to start our next topic of chapter 2, from hunting, gathering to growing food. And this is our lecture number 3. So let's start. So students, actually, this is an important chapter for studying history because it brings the importance of migration and how it shaped travel for people. After cavemen, we call the people who inhabited Earth at the time as hunters and gatherers. So the people then were named so because of their wild hunting habits and where they would hunt for wild animals, fishes, birds, nuts, fruits, etc. So these people couldn't stay in one place because yes, students, so these people couldn't stay in one place because they would exhaust all the resources available in the land after a certain period. Now also to hunt animals that would be on the move always was another reason for them to move around often. So at the time, getting fresh water was also a problem. So they would be on the search always and trying not to. Yes, trying not to exhaust the water of one place either. Then student, yesterday we also studied that there was a question, ki how do we know about their existence? How do we know about their existence? Okay, so archaeologists have found the various tools that they used which were made of wood, stone and bone which stood the stand of time, and these tools were used for hunting purposes, chopping the meat, making clothes out of animal fur, and chop plants. These resources were found mostly in places near water bodies and cave because these areas had more stone for them to make tools out of. Traces of ash have also been discovered, providing that they discovered fire and probably, ये स्टूडेंट्स, सो अब हमने फायर के बारे में भी देखा था, हमने क्या बताया था उसके अंदर आपको कि these resources are found mostly in places near water bodies and cave because these areas had more stone from them to make tools out of, and traces of ash have been also discovered. Yes, traces of ash. Okay, so traces of ash have also been discovered, providing that they discover fire and probably used it to scare away animals for heat and cook their food. Okay, then after that, we studied about a changing environment. Okay, so today we will discuss the names and dates. Today our topic is the names and dates. So archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. Actually जो archaeologists थे उन्होंने जिस मतलब archaeologists have given lengthy name for the time, जिस टाइम की हम स्टडी कर रहे हैं एंशियंट पीरियड की, जिस टाइम की हम स्टडी कर रहे हैं उस जैसे हमने किसकी स्टडी कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर अगो,
कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, सो आर्कियोलॉजिस्ट ने उस टाइम, उस पीरियड को, उस टाइम को एक लेंथी नेम दिया, दैट वी आर स्टडीइंग। सो दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। ओके, तो उन्होंने उस टाइम को, उस पीरियड को क्या कहा? पैलियोलिथिक। And this comes from two Greek words. Two Greek words, paleo, paleo meaning old, and lithos, lithos meaning stone. ओके स्टूडेंट, जैसे हमने देखा, हमने पीछे स्टडी किया था कि उस टाइम पर आपने देखा कि किस तरीके से जो स्टोन थे, ठीक है, वो एक एक तरीके से उन्होंने उस पीरियड को एक स्टोन एज के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं उस पीरियड को। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास जो रिटर्न में, जो हमारे पास कोई भी रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं, वो हमें कितने साल पहले की मिली हुई है। आप मान के चलें कि वो आप कहो कि नियर अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 ईयर्स अगो, ठीक है, ईयर्स अगो का जो पीरियड है, 3000 ईयर्स अगो का मतलब क्या हुआ कि जब हम बीसी की बात करते हैं, यहाँ पर जीरो से लेके क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर इधर 2000 ईयर ये हो गए, और ये हमारे पास 3000 में पीछे 1000 वाला एरिया है, जो 1000 बीसी वाला है। तो यहाँ तक आते आते तो हमें रिटर्न में जो है काफी सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वेद है हमारे पास, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 2 मिलियंस ईयर्स एगो से लेकर, और हम बात करते हैं आगे कहाँ तक की, अगर हम आज से बात करें तो 12,000, ओके, 12,000 बीसी तक की बात करें, ठीक है। 12,000 बीसी का मतलब क्या हुआ? अगर 12,000 बीसी की बात करें तो 10,000 बीसी की बात कर रहे हैं हम, 2000 उधर ले लें तो 10,000 में, तो 12,000 तक ये एक बहुत लंबा पीरियड है, जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटर्न में एविडेंस नहीं है। ओके, तो वहां पर देखो, हम इस एरिया की, इस पीरियड की 2 मिलियन ईयर अगो की पहले से स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ तक की हम स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ तक कि हमारे पास कोई रिटर्न में एविडेंस नहीं है, तो उस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस पीरियड में रिटर्न में कोई कुछ नहीं है आप एविडेंस, लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग साइट्स पर जो भी उन्हें रिमेन्स मिल रहे हैं, कोई बोन्स मिलती हैं या कुछ भी मिल रहे हैं, उन बोन्स से, उन रिमेन से, उन बिल्डिंग से वो स्टडी करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। तो एक तरीके से वो उन्होंने इस वाले पीरियड को 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 तक के पीरियड है, इस पीरियड को स्टोन एज का पीरियड बोला है, ठीक है। और ये जो पीरियड है, इस पीरियड को उन्होंने 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में उन्होंने इसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ओके, और ये सारी स्टोन एज है, तो इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग का 2 मिलियन ईयर में स्टार्टिंग में हम बात करें, तो उस पीरियड में इसे बोला जाता था पेलियोलिथिक। ओके, पेलियोलिथिक, पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि जो ओल्ड स्टोन की स्टडी। So, okay, clear students. So the name points to the importance of find of stone tools. तो ये जो नाम है, ये उन साइट से मिलने वाले जो स्टोन है, ठीक है, जो स्टोन टूल्स हैं, उनके इम्पोर्टेंस को ये बताता है। एंड द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम, देखिए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है? पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर्स तक, ये वाला सारा पीरियड आपका कौन सा है? पैलियोलिथिक पीरियड। एंड दिस लॉन्ग स्ट्रेच, ये जो इतना लंबा टाइम है, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। इस पूरे इतना, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स तक का बहुत लंबा पीरियड है, जिसको 3 टाइम में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। एंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सो यहाँ पर अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री की नियर अबाउट 99% स्टोरीज जो है ना, वो इसी पीरियड में ही वो घटित हुई हैं, इसी पीरियड में हुई हैं, कवर्स की गई हैं। ओके, सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, अब हमने पढ़ा था ना पीछे, देखो एनवायरमेंटल चेंजेस का हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पहले हमारा जो
अर्थ था वो पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ था, बहुत कूल होता था, लेकिन धीरे धीरे एनवायरमेंट में चेंज आया, वो ग्लेशियर पिघलने लगे, ठीक है, सरफेस प्लेन जो एरियाज है वो बनने लगे, और ग्रासलैंड जो है वो ग्रासलैंड जो है डेवलप होने लगी, ठीक है। तो हमने वो पीरियड देखा कि किस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आए। सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, वो पीरियड जिसमें हमने देखा कि एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे थे, बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, यानी मिडल स्टोन, मिडल स्टोन। यस स्टूडेंट, 12,000 ईयर्स अगो से, अब यहाँ 12,000 का जो आपने बताया, 12,000 से लेके आगे हम 10,000 तक जाए। 10,000 मतलब कितना टाइम पीरियड, 2,000 ईयर्स का जो टाइम था, ये 2,000 ईयर्स का ये जो टाइम था, इस टाइम में जब एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए थे 12,000 ईयर्स से, जब एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए और वहां से लेके अगर आप 10,000 ईयर्स तक जाओ, यानी ये 2,000 ईयर्स का जो ये टाइम पीरियड है, इस एज को बोला जाता है मेसोलिथिक मिडल स्टोन। ओके, सो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, तीनों तीनों आपके पीरियड की, ठीक है। स्टोन टूल्स, जो ये स्टोन टूल्स मेसोलिथिक पीरियड किस लिए बोला है, मेसोलिथिक पीरियड किस लिए बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें जो स्टोन टूल्स थे, वो जो उन्होंने स्टोन टूल्स जो पाए गए इस पीरियड में, वो जनरली टाइनी होते थे, छोटे होते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और इनको क्या होते थे, ये माइक्रोलिथ, छोटे छोटे माइक्रोलिथ थे, जिन क्योंकि ये टाइनी होते थे, टाइनी होने की वजह से इन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। सो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन अ हैंडल ऑफ बोन एंड वुड। अब क्या होता था, जो ये माइक्रोलिथ्स जो थे ना, माइक्रोलिथ्स कहा गया इन्हें, ये एक्चुअली इसमें जो ये स्टोन होते थे, इनके जो नीचे का जो हैंडल होता था, ठीक है, जो हैंडल होता था, जितने भी टूल्स है उनका हैंडल किस चीज से बना होता था, बोन या फिर वुड से, ठीक है, या तो बोन से, हड्डियों से, या वुड से हैंडल बना होता था, टू मेक टूल्स एंड सच एज सॉ एंड सिकल्स। जैसे आपने देखा होगा, सो मतलब कि जैसे होता है ना, हंसिया होती है, जो हम काम उसमें फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या सिकल का यूज करते हैं, ठीक है, सिकल का यूज करते हैं, जो हंसिया होती है, या आरी जिसको कहते हैं, सिकल्स मतलब आरी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके के जो टूल्स हैं वो मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिले हैं, जिसमें कि इनका जो हैंडल था वो या तो बोन से या वुड से बना होता था। सो एट द सेम टाइम older varieties of tools continue to be in use। ओके, तो इसी साथ साथ इसी पीरियड वाले जो टूल्स थे, वो भी मतलब सेम टाइम में ही, और काफी सारे ओल्ड वैरायटी के टूल्स भी इस पीरियड में आपको यूज करने में देखोगे। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज, ओके, अब नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज, कैसे, जो 10,000 ईयर्स के बाद में है। ओके, 10,000 से जो बाद का पीरियड आया, ओके, सो 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। ठीक है, 10,000 से आगे इधर चले जाओ, इधर 1,000 की तरफ जाओ, 10,000 से लेके, तो वो हमारा पीरियड है न्यूलिथिक। ओके, तो हम व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स, तो हम देखें, देखिए, यस स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज आर, ये जो पिक्चर है, दिस इज आर पैलियोलिथिक टूल्स। ओके, पैलियोलिथिक टूल्स। तो पैलियोलिथिक टूल्स में आप क्या होता था, उसमें आप देख रहे हो कि जो स्टोन होता था, उसमें किसी तरह की कोई शेप, कोई कुछ नहीं बनाई जाती थी, जैसे बड़े बड़े ये इस तरह के स्टोन उनको मिलते थे, इन स्टोन को यूज वो एनिमल्स का शिकार करने में, उनको मार कर खाने में, उनके अंदर से उनको स्किन मतलब चॉप करने के लिए, जो भी उनको पत्थर मिलता था, स्टोन मिलता था, उसका वो यूज कर लेते थे। ठीक है, अब ये है मेसोलिथिक पीरियड। इन मेसोलिथिक पीरियड में क्या था, कोई इस तरह के ना, जो अब स्टोन पहले बड़े बड़े सारे यूज कर लेते थे, लेकिन मेसोलिथिक में इस तरीके से छोटे, उन्होंने छोटे जो स्टोन है वो टाइनी स्टोन होते थे, और उनका जो उनके पीछे इस तरीके का ये हैंडल बनाया जाता था, जैसे ये हैंडल आप देख रहे हो, ये बोन का हैंडल बना हुआ है। सो मेसोलिथिक टूल्स वर एसेंशियली शार्पेंड, बहुत ज्यादा शार्प नजर आ रहे हैं आपको कंपैरेटिवली पैलोलिथिक टूल्स के। Okay, so Mesolithic tools were essentially sharpened wood, bones, or
or antlers studded with tiny chips of stone. And this is a Neolithic stone. Neolithic टाइम के स्टोन या टूल्स, स्टोन टूल्स. अब ये देखिए, अब नियोलिथिक में क्या आया? नियोलिथिक में उन्होंने, उनके माइंड में ये आया कि हम जो है अपने जो मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो भी ये टूल्स थे उनको और ज्यादा शार्प कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम उनको और ज्यादा शार्प करेंगे तो और अच्छे से हम लोग हंटिंग कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं चीजों को. ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से फिर ज्यादा शार्प करना शुरू किया नियोलिथिक पीरियड में अपने टूल्स को. ओके, सो द नियोलिथिक रेवोल्यूशन. हाँ जी, नियोलिथिक अभी हमने बताना था. द एंड ऑफ द आइस एज. हमने स्टार्टिंग बताया था ना कि स्टार्टिंग का टाइम वो था जब अर्थ जो है वो ज्यादातर ग्लेशियर से कवर थी. ओके, आइस से कवर थी. सो यहाँ पर नियोलिथिक रेवोल्यूशन, द एंड ऑफ द आइस एज. जब आइस एज का एंड हुआ was the beginning of the Neolithic revolution. तब वहां पर Neolithic revolution आया. So what does revolution mean? Revolution mean a sudden or momentous change in a situation. अचानक से कोई चेंज आ जाता है सिचुएशन में. उसके बाद देन व्हाट डज नियोलिथिक मीन? ये नियोलिथिक का क्या मतलब है? इट इज ग्रीक फॉर न्यू स्टोन. न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन. सो न्यू स्टोन. ओके, पीरियड लास्टेड फ्रॉम, अब आप ये पीरियड ले नियोलिथिक का, वो कहां से कहां तक लोगे? 8000 टू 4000 BC. क्लियर स्टूडेंट्स? Now the next topic is the beginning of farming and herding. Now the next topic we will start the beginning of farming, and herding. अच्छा स्टूडेंट, आपको अभी पीछे जब मैंने बताया था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो हमारे जो अर्ली पीपल था, अर्ली मैन था, वो किस तरीके से पहले हंटर गैदरर्स हुआ करते थे और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था क्या करना, फार्मिंग स्टार्ट करनी शुरू की थी. हम पीछे टॉपिक करके आए हुए हैं कि जब क्या हुआ था, एनवायरमेंटल चेंजेस आए थे, तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ग्रासलैंड ग्रो होनी शुरू हुई, ग्रासलैंड डेवलप हुई, जिसकी वजह से एनिमल जो है ना, जो ग्रास को खाते थे, एंटीलोप वगैरह, डियर वगैरह, वो सब ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो वहां पर जो ग्रास को खाते थे उनका नंबर बढ़ने लगा. और उनका नंबर बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे जो हमारा जो अर्ली मैन था वो अब इन एनिमल्स को क्या करने लगा, अब वो फार्मिंग भी करने लगा और इनकी हर्डिंग यानी कि इनको उन्होंने पालना शुरू करा. उन्होंने जो एनिमल्स थे उनके डोमेस्टिकेशन, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया. तो ये टॉपिक हमारा यही इसी चीज का है कि द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. किस तरीके से जो अर्ली पीपल था उसने फार्मिंग स्टार्ट की और हर्डिंग शुरू की. सो दिस वाज आल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in the different parts of the subcontinent. अब क्या हुआ, ये जो पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में अलग अलग एरियाज में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नेचुरली क्या होने लगी, नेचुरली जो ये ग्रेन थी, ग्रेन में क्या, जैसे ग्रेन में क्या क्या इंक्लूड था, ग्रेन में जैसे व्हीट, बार्ले, जो ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हीट. ओके, एंड देन ये दिस इज बार्ले एंड दिस इज राइस क्रॉपिंग. ओके, सो स्टूडेंट एक्चुअली क्या था, जब हमने देखा कि कैसे ग्रासलैंड जो है वो ग्रासलैंड जो है वो डेवलप हुई, तो पहले तो स्टार्टिंग में ग्रास था. ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, किसने, अर्ली पीपल ने. अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो ग्रासेस थे ना उसमें और भी दूसरे तरह के जो पौधे थे वो निकले. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये वाला है. जब अर्ली जो मैन था उसने एक चीज नोटिस की कि जब यहाँ पर नेचुरली इस तरह से व्हीट, बार्ले और राइस जो है वो ग्रो होने लगा, तो उसने देखा कि इसमें अलग तरह के ये पौधा था. इसमें क्या था, जो पीछे का जो स्टक था, देखो काफी, ये देखो ये जो इसकी डंडी थी, उसने देखा ये काफी मजबूत है. और यहाँ पर ना ये जो आपका है, ये देखिए ये मोटे, उसने देखा कि ये किस तरीके का अनाज, कुछ इसमें दाने जो है वो पक रहे हैं.
तो जब ये शायद उनके जब उन्होंने इनको निकाला होगा और जब इनका यूज करा होगा तो उनको ये काफी अच्छे लगने शुरू हुए होंगे। तो धीरे धीरे जो अर्ली मैन था उसने एनिमल्स को खाने की बजाय, उनका मीट खाने की बजाय इन चीजों को यूज करना शुरू किया होगा अपने फूड के लिए। ओके, तो इस तरीके से ऐसा कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब उनको इस तरह के एविडेंस मिलते हैं तो वो इसी तरीके से हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ओके, सो दिस वाज आल्सो अ टाइम, ये वो भी टाइम था व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग, ठीक है, बहुत काफी सारी जो ग्रेन्स थी, अनाज थी, बियरिंग ग्रासेस, जो ग्रास हमने देखा कि ग्रास तो पहले से ही देखा था हमने, ग्रो होनी शुरू हो गई थी, जिसके अंदर उन ग्रासेस में वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली। नेचुरली जो है ये इस तरह का जो ग्रेन था वो ग्रू हुआ in different parts of subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food. अब मैंने आपको बताया कि अर्ली मैन जो है वो सभी कुछ क्या देख रहा था, तो धीरे धीरे वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था चीजों को, नेचर में जो भी कुछ चेंजेस हो रहे थे उनको ऑब्जर्व कर रहा था। तो उस टाइम के जो मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन है उन्होंने जब इस तरीके से ग्रेन ये ग्रू हुई होगी तो उन्होंने इस ग्रेन को कलेक्ट करना शुरू किया और उसको एज अ फूड उसको यूज करना, उसको खाना शुरू किया एंड लर्न। और उन्होंने ये सीखा कि वेयर दे ग्रो, उन्होंने ये भी वहां पे ये भी सीखा क्योंकि वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जो भी चेंज आ रहा था एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरली जो चेंजेस आ रहे थे तो उनको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने ये भी देखा कि ये जो ग्रेन है ये वेयर दे ग्रू, कहाँ पर ये ग्रो हुई है, कहाँ पर ये अनाज हुआ है, और व्हेन दे राइपन, कि कहाँ ये ग्रो हुई और उसके बाद कब ये राइपन, कब ये पक गए हैं दाने। तो उन्होंने वो पूरा टाइम पीरियड उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस चीज को सीखा कि इस सीजन में ये क्या होती है, इस सीजन में ये ग्रू होनी शुरू होती है यहाँ पर, और एक सीजन में आकर थोड़े 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ये राइप हो जाती है, पक जाती है फसलें। So this may have led them to think about the growing plants on their own. ओके, तो इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से ऐसे करते करते उन लोगों ने इन अनाज को, इन ग्रेन को खुद से इन्हें ग्रो करना सीख लिया। एंड इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। इस तरीके से लोग जो हैं वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। या धीरे धीरे जैसे उन्होंने ये देखा कि कैसे ग्रो हो रही है, अब इन देखिए इन लोगों ने अपने आप ही इन पौधों को, इनको क्या करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ऐसे वो अपने आप, जो अर्ली मैन था वो धीरे धीरे खुद से ही एक फार्मर बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट इज, so student, people could also attract and then animals tame animals by leaving food for them near their shelters। ये स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था, पीछे आपको बताया भी था कि जैसे ग्रासलैंड जब ग्रो हुई थी तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं धीरे धीरे जो इन ग्रासेस को खाते थे उनका नंबर बढ़ता चला गया। तो अब इन लोगों ने उन एनिमल्स को देखो, जितना वो जिन वो हंटिंग करते थे, जिन एनिमल्स को वो शिकार करके खाते थे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जिनका नंबर बढ़ा। और उन्होंने जो ये अर्ली मैन था उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे वो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, कई जो है उनसे वो दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है, जो कई ऐसे एनिमल हैं जिनकी जो वूल देते हैं, ठीक है, जिनसे ऊन मिलती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने घरों के आसपास उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने घरों के आसपास से इस चारा रखकर, ठीक है, अपने घरों के आसपास ही वो क्या करने लगे, चारा रखने लगे। देखो उन्होंने ये देखा कि भाई इन एनिमल को क्या चाहिए, ग्रास चाहिए खाने के लिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ग्रास लैंड होनी चाहिए, भाई वो ग्रास लैंड पे जाकर ही ग्रास खाएंगे। अगर उस ग्रास को हम इकट्ठा करके कहीं भी रख लें तो वो एनिमल वहीं पर वो ग्रास खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें सीखी उन्होंने, और अर्ली मैन ने अपने ही घरों के आसपास इन ग्रास को रखकर इन एनिमल्स को अट्रैक्ट कर, इन एनिमल्स को उस ग्रास की तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें क्या बना लिया, उन्हें
डोमेस्टिक बना लिया, उन्होंने उनको पालतू बनाया होगा। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से उनको एक शेल्टर देकर, उनको घर देकर, अपने ही घरों में पास फूड रखकर उन एनिमल्स को टेम किया। टेम का मतलब यही होता है कि उनको एक तरीके से अपने वश में कर लेना, उनको पालना शुरू कर देना। ओके, सो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, जो पहला एनिमल जो उन्होंने जिसको टेम किया होगा, वो कहा जाता है कि was the wild ancestor of the dog. Yes, you can see this picture, student. ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग में जो वो उस टाइम पर डॉग होता था, वो आपको देखो ये वाली पिक्चर कैसी दिख रही है। ये एक वाइल्ड डॉग है, एक जैसे होता ना एक खूंखार सा जो डॉग था, क्योंकि उस टाइम पर डॉग इसी तरीके के दिखते थे, बड़े खूंखार होते थे, जंगली होते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उनको क्या करना शुरू किया, जब उनको अर्ली मैन ने पालना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे इस तरह के ना सोफिस्टिकेटेड होते चले गए। देखो कितने धीरे धीरे ये इस तरह के पालतू होकर बड़े प्यारे दिखने लगे। मतलब इस तरीके की जो ये जो खूंखार है, ये नहीं नजर नहीं आते थे, क्योंकि अब ये पालतू हो चुके थे। ओके, तो अब वो ये कहते हैं कि ये जो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग एंड लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखो, जो भी एनिमल थे जिनको वो टेम किया गया, वो जो डॉग का जंगली पूर्वज था। ठीक है, एंसेस्टर, वाइल्ड एंसेस्टर, यानी वो डॉग का जंगली पूर्वज हुआ करता था इस तरीके से। ठीक है, वो एक जंगली पूर्वज था, एक वाइल्ड एंसेस्टर था। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसको सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, वो ये इस तरह का डॉग था, वाइल्ड एंसेस्टर था। धीरे धीरे लोग जो हैं वो और दूसरे एनिमल्स, जैसे कि आप ये कह सकते हैं दूसरे एनिमल हो गए, जैसे शिप, गोट, कैटल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो अ पिग। पिग को भी वो क्या करने लगे, लिव इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस, ate grass. So often people protected these animals from attacks by the other wild animals, and this is how they become herder. तो अब धीरे धीरे लोगों ने शिप को, ठीक है, शिप, गोट, कैटल और जो पिग होते थे, ठीक है, सुअर जो होता था, पिग, उसको भी अपने घरों के नजदीक आने के लिए उन्होंने उन्हें क्या किया, उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया कि वो आए उनके, क्योंकि वो उनके प्रति क्या हो गए थे, जेंटल होने लगे। पहले क्या होता था, एनिमल को, क्योंकि वो शिकार करता था अर्ली मैन, तो एनिमल भी क्या होता था, उसे देखते ही भाग जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू किया, अर्ली मैन ने, वो उनके प्रति जेंटल हो गए। ठीक है, जेंटल हो गए, तो धीरे धीरे ये भी जो, जब इन्होंने देखा कि भी अर्ली मैन वो हमारा शिकार नहीं कर रहा है, तो ये जो एनिमल थे ये धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उनके घरों के पास आने लगे, और इन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया। ओके, तो ये इस तरह के जो आते, शिप, गोट, काउ, पिग जैसे जो एनिमल थे, वो अपने घरों के पास आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जो एनिमल थे वो किसमें, झुंड में रहते थे। ठीक है, इस तरह के जो होते थे ना एनिमल्स, वो हमेशा क्या रहते थे, झुंड में रहते थे। ओके, और ज्यादातर वो क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। एक तो वो हर्ड्स थे यानी झुंड में रहते थे, दूसरा वो ग्रास खाते थे। तो अक्सर लोग जो जितने भी दूसरे वाइल्ड एनिमल्स थे, उनके आक्रमण से इनकी रक्षा भी किया करते थे, क्योंकि जब इन्होंने अर्ली मैन ने इनको पालना शुरू किया, देखिए आप देखो कि किस तरीके से ये अर्ली मैन था, और यहाँ इतने सारे इन्होंने एनिमल जो है वो इन्होंने अब पालतू बनाने शुरू करे। ये देखिए आप पिक्चर में, तो किस तरीके से इन्होंने पालतू बनाने शुरू किए। तो इन्होंने क्या किया, ये अर्ली मैन था, इसने, क्योंकि जितने भी दूसरे वाइल्ड एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते थे, वो ग्रास नहीं खाते थे, वो इन एनिमल्स को खाते थे। तो इन्होंने जब इन्हें टेम करना शुरू किया, तो इन्होंने इनको प्रोटेक्ट भी करना शुरू किया। प्रोटेक्ट किससे किया, वाइल्ड एनिमल के अटैक से इनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया। सो दिस इज हाउ दे बिकम हार्डर। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या बन गए, हार्डर भी बन गए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ये एक नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है। आई थिंक स्टूडेंट्स 5 minutes आर लेफ्ट, सो आई डोंट, यहाँ पर अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है।
So tomorrow we will discuss this topic. Okay, so that's all for today. Have a good day.